Today we are here to discuss our first chapter and the third part of that chapter. So today we will complete our chapter. So in this slide, in this video class, we are going to discuss some remaining topics. So before starting the next topics, we must revise what we studied in the last video classes. So just starting the revision, we talked about operating system. What is operating system? So it is the system software, and it work like the interface between user and hardware. So next we discussed about booting process, hard drives. Okay, then the functions of operating system. Now what is the IPU cycle we discussed, also the types of operating system we discussed, utility software, antivirus software. Okay, so what is utility? Utility software ensures the smooth functioning of the computer, and antivirus is also an utility software. Okay, now the application software designed for the specific problems or a specific task. The types of application software we discussed. Then we were discussing software licensing. What is the licensing? It is the terms and conditions to use the software. Means software license tells us how to use the software. In a very nutshell, we can say that this is the meaning of software license. So now we will discuss some remaining licenses. Okay, so the open source software, a very important category, because right now nothing is free. But if we are getting anything free and like open source, so we must know what is this. Is it safe or not? So open source, the software for which programming code is available to the users in order to read it, make changes, build new versions of the software, is called open source software. It can be distributed freely and used by everyone free of cost. इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रोग्रामिंग कोड भी हमें मिल जाए. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी हम क्या बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग दैट nowadays nothing is free. So when nothing is free and we are getting the source code also, means programming code. What is the programming code? The code which was written to design that software, हमें वो कोड भी मिल रहा है. मीन्स जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंटेलेक्चुअल वर्क की, ये हमारा किसी और के द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर के जितना भी मेहनत, वट एवर द थिंकिंग, वट एवर द प्लानिंग ही डिड, वो कोड भी आपको अवेलेबल हो जाता है. दैट इज नोन एज द ओपन सोर्स. उसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल है. किस लिए अवेलेबल है? सो यू कैन रीड, आप उसको पढ़ सकते हैं फॉर योर नॉलेज. यू कैन मेक चेंजेस फॉर योर प्रैक्टिस. अगर आपको लगता है कि यू कैन मॉडिफाई, या फिर आपके हिसाब से कोई मेन्यू उसमें मिसिंग है, कोई भी फीचर मिसिंग है, सो यू हैव द ऑप्शन टू चेंजेस. यू कैन बिल्ड न्यू वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. आप उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, या फिर उसके कुछ फीचर्स कम करके आप अपने लिए उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं. एवरीथिंग यू हैव, every freedom you have, just because of this open source. When source code is available to you, you can do anything. Okay, examples of this open source softwares are the open office software, Mozilla Firefox, Android operating system, etc. There are various softwares that are available in the category of open source, and their source code is also available. Now you will be thinking कि अगर Android free है तो हम एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं तो हर फ़ोन में अलग अलग चीज़ें क्यों होती हैं? द एंड्रॉयड ओएस इज फ्री, बट योर मैन्युफैक्चरर, जो भी कंपनी का, जिस भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, दे गेट द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, और वो आपको उस हिसाब से फ़ोन डिज़ाइन करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज कर देते हैं, और कुछ एडिशनल एप्लीकेशंस वो अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए ऐड कर देते हैं. दिस इज द रीजन कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं. बीच में आपने एक एंड्रॉयड 1 के बारे में सुना होगा. सो द एंड्रॉयड 1 वॉज द फीचर जहाँ पे गूगल के साथ एग्रीमेंट हुआ था कुछ कंपनियों का, कुछ मोबाइल फ़ोन वेंडर्स का, कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एज इट इज़ रखेंगे जैसा हम आपको सप्लाई करते हैं. सो दैट वॉज द एंड्रॉयड 1 लाइसेंस, और उसके थ्रू कुछ फ़ोन्स भी हमें आए थे मार्केट में, एंड दैट वॉज रियली वेरी हैंडी फोन्स.
उन फोन्स में एडिशनल एप्लीकेशंस का लोड नहीं था, तो आपको जितनी भी स्टोरेज मिलती थी दैट वाज कंप्लीटली फॉर योर यूज। बट जब आप किसी दूसरे वेंडर का फोन खरीदते हैं जो एंड्रॉइड वन लाइसेंस के थ्रू नहीं है, तो दे हैव देयर ऑन फ्रीडम टू कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वो उसको कस्टमाइज करके बहुत सारे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपके फोन में देते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, बट यू कैन नॉट अनइंस्टॉल देम ऑल्सो। सो दिस इज द ओपन सोर्स एंड दिस वाज द एग्जांपल, जैसे हम आप ओपन सोर्स को समझ सकें। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि गूगल ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड भी फ्री में अवेलेबल कराया हुआ है, एनीवन कैन मॉडिफाई। if you have the developing capability, you can download the original source code and you can modify it. Okay, now next we will discuss the proprietary or closed source software. Okay, so what is proprietary or closed source? भाई जिसका सोर्स आपको अवेलेबल नहीं हो, मतलब जिसका प्रोग्रामिंग कोड जिस सॉफ्टवेयर का आपको अवेलेबल नहीं हो, आपको नहीं मिले, दैट इज नोन एज द क्लोज्ड सोर्स and also you can call it proprietary software. Okay, it doesn't allow people to look at its code or modify it and restrict its distribution. अब देखिए आपको क्या क्या लिमिटेशंस मिलती हैं आपको प्रोप्राइटरी या फिर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो आपको सोर्स कोड यानी प्रोग्रामिंग कोड नहीं मिलता, आप उसको पढ़ नहीं सकते, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो यू कैन नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट। ओपन सोर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी मिलता है, मीन्स आपने उसको डाउनलोड किया, आपने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके आप चाहते हैं कि आपका वाला वर्जन आप आगे कंटिन्यू करो, तो यू कैन प्रोवाइड योर मॉडिफाइड वर्जन ऑल्सो एज वेल। बट यहाँ पे यू कैन नॉट डू, मतलब आप ना तो कोड पढ़ सकते हैं उसका, ना ही आप उसके कोड में कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और आपने जो डाउनलोड किया आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर द क्लोज सोर्स, सो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट थिंग ऑल्सो। सच सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली अवेलेबल और कैन बी परचेस्ड। तो हो सकता हो कि ऐसे सॉफ्टवेयर आपको फ्री में भी मिल जाए, और हो सकता है ये सॉफ्टवेयर आपको परचेज भी करने पड़े। कुछ एग्जाम्पल देखें अगर हम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक ओएस जिसको आप मैकिंटोश ओएस भी कहते हैं, iOS एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं कि फ्री में कैसे अवेलेबल है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट इज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बट दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बट अवेलेबल, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये है हमारे पास प्रोप्राइटरी एंड क्लोज सॉफ्टवेयर के बारे में। नाउ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, as the name suggests freeware, it means the softwares which are available free of cost, they are known as the freeware. कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके फ्री भी होते हैं, कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको परचेज भी करने पड़ते हैं। ओके, नाउ द सॉफ्टवेयर विच इज मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूजर। जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आप उनको क्या कहेंगे? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। मतलब आपको ₹1 भी नहीं देने, यू डू नॉट हैव टू spend a single penny to use that software, to get that software. Okay, it is not necessarily free to be used, copied, modified and redistributed. अब यहाँ पे एक बात है आपको जो ध्यान देनी चाहिए, it is very very important point. It is not necessarily free to be used, copied, modified and redistributed. हो सकता है वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपको मिले, बट आपको ये परमिशन ना मिले कि आप उसकी कॉपी बना सको, मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू रेप्लिकेट दैट सॉफ्टवेयर। आप उसकी कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, एंड आप रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लाइसेंस, वो किस लाइसेंस के साथ उस सॉफ्टवेयर को रिलीज किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होता है। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले दैट इज फ्री सॉफ्टवेयर। मतलब आपको सॉफ्टवेयर के लिए अगर ₹1 भी खर्च नहीं करना है, दैट इज द फ्री सॉफ्टवेयर फॉर यू, दैट इज फ्रीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर is freeware and some proprietary softwares are also freewares. जो भी मैं बात कर रहा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैक्सिमम केसेस में आपको फ्री मिलते हैं, बट कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं भी मिल सकते आपको, एंड सम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर आल्सो फ्रीवेयर। फॉर एग्जांपल, विंडोज मूवी मेकर आपके माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, बट दैट इज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, बट दिस इज आल्सो अवेलेबल ऑन फ्री। ओके, so this is the example of proprietary software but available as the freeware software. So these was the topics in this chapter.
Now we have completed the chapter.